morning, you're watching News X and I'm Medha Sharan. Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar and 4 other persons were killed after an aircraft carrying them crashed in Pune district on Wednesday morning. The incident occurred when a Learjet 45 aircraft, registration VTSSK operated by VSR, was landing in Pune's Baramati area, according to the officials. There were 5 passengers including NCP Chief Ajit Pawar, along with 2 more personnel. One was a PSO and 1 attendant, and 2 crew members, which is the pilot in command and the first officer, on board the Learjet 45 aircraft when the accident happened. Following the incident, Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu said that we will conduct an investigation in a transparent and accountable manner. Preliminary information indicates that visibility was poor at the site at the time of landing around 8:48 a.m. End quote. My colleague Anand Singh joins us from Vidya Pratishthan School of Biotechnology, as well as Arzu Seth, who is joining us live from Bharati Vidya Pratishthan, which is the funeral site. Arzu, you are at the funeral site right now. What exactly is the situation like on the ground? Are there supporters there on the ground? What are some of the sentiments that the supporters, if they are on the ground, are echoing? Well, yes, Deputy CM's Ajit Pawar's death have sent shockwave across the Maharashtra and also the political scenario. And in fact, right now I'm present at the Vidya Pratishthan ground funeral site where the last, respect will be paid by the supporters and also, leaders across the party line have expressed the deep condolences, calling it a huge personal and also the political loss. Baramati, his political stronghold, is witnessing an outpouring of grief from the supporters and the local since the early morning. And as you can see, thousands of people, lakhs of people have gathered at this Baramati ground to pay their last respect to their leader Ajit Pawar. And as you can see, there are people, we will also be going across them to understand what they are feeling right now, because the news of death of Ajit Pawar have shaken them, and in fact people are in emotional state right now. We'll try to have a conversation. क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? बारामती से हूँ। आप बारामती से हैं। एक डेप्यूटी सीएम थे महाराष्ट्र के, लेकिन बारामती से उनका जो रिश्ता था, और आज बारामती ने एक अपने नेता को खोया है। आप लोग यहाँ पर अपना आखिरी एक रिस्पेक्ट देने के लिए पहुँची हैं, क्या कहेंगे? हाँ, वो तो हमारे बहुत अच्छे दादा थे। हमें बहुत मतलब दुख हो रहा है कि ये अचानक हो गया ना, इसलिए हमें बहुत दुख हो रहा है। हमारा तो विश्वास ही नहीं बैठ रहा है कि ऐसा हो गया है, ऐसा हो रहा है। जब इस खबर के बारे में सुना तो भरोसा हुआ कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि उनकी जनसभाएं थी, उनको यहाँ पे संबोधित करना था, आप लोगों से मिलने आने वाले थे वो यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। ऐसा हो सकता है, ऐसा ख्वाब में भी नहीं हमने सोचा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है, इस पर अभी तक नहीं होगा, मुझे विश्वास नहीं बैठ रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा लॉस है महाराष्ट्र के, अगर नज़रिए से देखें तो महाराष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ा लॉस हो गया है। महाराष्ट्र ने पूरा इंडिया के लिए लॉस हो गया है, क्योंकि ऐसा उम्दा नेता अभी होना नहीं, जो पेट को 5 बजे से लेके शाम 10-11 बजे तक लोगों के लिए उपलब्ध होना, ऐसा नेता होना अभी फिलहाल तो कोई दिखता नहीं। अच्छा, आप लोग सुबह से मिलने के लिए वो बुलाते थे आप लोगों को, आप लोग की शिकायतें सुन? हाँ, अभी देखो, हम जब अभी ग्रामीण एरिया में रहते हैं, अगर कोई काम लेके हम अगर मुंबई में जाते हैं तो हमारे मन में अभी ऐसा सवाल आ रहा है कि हम किससे मिले, अभी इतने हमारे वो नज़दीक थे। और उनके साथ मेरा एक ऐसा मतलब एक प्रसंग है, 2017 में मैं उनके गाड़ी का एक दिन सारथ्य किया था, अजित दादा की गाड़ी का। तो उसमें उन्होंने मेरे से एक बात पूछा था कि नितिन, तुम कितना ही गाड़ी भगाओ, लेकिन इस गाड़ी में मैं हिलना नहीं चाहिए। आज भी मेरे को ऐसा कान में वो आवाज़ आ रहा है कि दादा मेरे को बोल रहे कि नितिन, तुम कितना भी गाड़ी भगाओ, लेकिन मैं गाड़ी से हिलना नहीं चाहिए। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है।
बॅरिकेड लावून घ्या तिथं. तो देखिए कहीं ना कहीं ड्राइव जब करवाते थे, जो उनके साथ ड्राइव करते थे उनको भी वो बोलते थे कि जो है सही से ड्राइव करे, ताकि उनको भी जिस लोग हैं वो बता रहे हैं जिस तरीके से। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं पुणे से आया हूँ मैडम, और मैं डॉक्टर हूँ। एक्चुअली मैं दादा का जब स्वाइन फ्लू का जो पेंडेमिक था, तो मैं खुद दादा को मैंने वैक्सीनेशन किया था। जिजाई बंगला है पुणे में दादा का, और मैं दादा का ही डॉक्टर चला चला हे जे इकडे आलेले आहेत. हूँ। और मुझे बहुत या फंक्शन ऐसा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे दादा अभी इस दुनिया में नहीं है। आपल्या ऐसा मुझे लग रहा है कि दादा कहीं में है और अभी आने वाले हैं, और लोगों के लिए जो सामाजिक और जो राजकीय जो नुकसान है, इतना महाराष्ट्र का ही नहीं कि पूरा जो दलित, पिछड़े, कष्टकरी और शेतकरी जो लोग हैं, और जो किसी को उनका कोई सुनता नहीं, ऐसे सुनने वाले जो दादा थे वो मसीहा थे, और सबके लिए वो दादा थे। दादा मतलब एक सम्मान का शब्द है, और दादा हमारे लिए बहुत ही ये दुखदायक, इतना बड़ा हमको दुख तो उनको मतलब उनको ऐसा दर्दनाक दर्द उनको हुआ, लेकिन हम महसूस करें हमको दर्द हुआ है। बिल्कुल, जैसे कि वो कह रहे हैं कि आप लोग क्योंकि दादा उन्हें बुलाते थे, तो जिस तरीके से दादा एक बड़ा भाई होता है, तो आज ऐसा लग रहा है एक बड़े भाई का साथ छूट गया आप लोगों से। हाँ सही है, ये तो बड़े भाई का साथ छोटा है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र का बड़ा भाई गया है। उत्तम प्रशासक थे वो, महाराष्ट्र के लिए एक विजनरी मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। उनके पास विजन था, और जो भी काम वो पूरे बारीकी की तरह से पूरा विजन बना के ही करते थे। बड़ा हम बारामती के बारामती से बड़े भाई थे हम। आज सब बारामती और सब लोगों को बहुत दुख हो गए। बारामती का पूरा डेवलपमेंट सब आज पावर फैमिली और दादा ने किया है। हम कभी भी नहीं भूलेंगे दादा को। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से डेफिनेटली द पीपल आर इमोशनल, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर रिमेंबरिंग देयर मोमेंट्स विद अजीत पवार, एंड इन फैक्ट राइट नाउ वी आर शोइंग यू द विजुअल्स फ्रॉम द फ्यूनरल साइट वेयर द प्रिपरेशन इज टेकिंग प्लेस, एंड एज यू कैन सी the pictures of Ajit Pawar has been put across the ground, and to showcase their life story, and also as you can see the stage is also being prepared where the funeral will be taken place. The body will be brought here, and in fact a heavy security can clearly be seen at this point of time. We'll also try to have a conversation with some of the people who are standing here. कहाँ से आए हैं आप? हम मांडोगन फाटा शिरूर से पुणे जिला से। जिले से आप लोगों को, हमको ये बहुजन समाज का नेता था, अकेले महाराष्ट्र का वो बहुजन समाज हा, जो गौर गरीब जनते का वो नेता, आणि वो तो उसको हम इसकी जो अभी दुखद निवेदन हो गया है, ये भरपाई कभी निकलेंगे नहीं। आणि वो दादा की बात ऐसा रहता का हमेशा कि वो हमेशा वो गौर गरीब जनते के साथ काम करने वाले अच्छे आदमी। हम महाराष्ट्र पुणे से आए गए, शिरूर तालुका मांडोगन फराटा गरमाल से सटवाई देवी यात्रा कमेटी से दादा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। अच्छा, फिलहाल अगर बात करें तो जिस तरीके से वो डेप्यूटी सीएम भी थे महाराष्ट्र के, तो ऐसे में अब आगे किस तरीके से जगह पे आप किसी को देंगे? दादा के जगह दादा सर का वह आदमी अभी ये महाराष्ट्र में होने वाला नहीं, होएंगे वो तो दादाच हो रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं रहेंगे अभी। Definitely. So people are right now even not seeing anyone at that place. Also, we'll also try to have a conversation with more people who are standing here. आप कहाँ से आए? मुंबई से आया हूँ मैं। मुंबई से आए हैं। आज आखिरी अंतिम दर्शन जो है वो आप लोग करेंगे, क्योंकि ऐसे तो अक्सर आप लोग मिलने आते थे। अजीत दादा अगर कहें तो वो भी आप लोगों से यहाँ पर मिलते थे। दादा मुझे पर्सनली पहचानते थे। request you to hold on. I would please request you to stay on with me. Let me also go across to Anand Singh, who is joining us live from Vidya Pratishthan School of Biotechnology. Anand, Ajit Pawar, of course, has tragically passed away, and
From what we are seeing right now, of course, he was a people's leader, dearly beloved by the people of Baramati. Baramati was his home turf. You are on the ground. What exactly is the sentiment like at that place? Yeah, Medha, look, the way in which you just mentioned that how towering leader Ajit Pawar was for Baramati, as Baramati, which people here recall that what it was 30 years ago, and after the entrance of Ajit Pawar in Baramati's politics, that how the face of Baramati changed and how it found its place on the national map of the country. So clearly, you can see just behind me that how the vehicle has been arranged over here. This is a special vehicle which will be carrying the mortal remains of Ajit Dada Pawar, as Ajit Pawar was fondly called by the people over here, his supporters, his party workers, as Dada. So clearly, you can see several people who have been arriving from different parts of the states. They are offering floral tributes on the portrait of Ajit Pawar, and they are giving their last respect to Ajit Pawar. So clearly, we will try to speak to some of the people over here, and we will try to understand that what's the sentiment and why Ajit Pawar was so popular in Baramati and why people loved him. Despite the fact that he has got a very witty style of interacting, he used to keep his doors open since 6 a.m. in the morning, as people used to come and meet him, and he used to listen to their grievances, and instantly he used to dial the officers, or he used to direct his personals to take follow of the applications that he has received. So several of the people have arrived here, so we'll try to speak to some of them and try to understand that what Ajit Dada Pawar meant for them. Sir, आप कहाँ से आए हैं? मैं सिंदखेड़ा, धुलिया जिला, सिंदखेड़ा से। अजीत दादा का अगर हम नाम लें बारामती में या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्टी सीएम रहे हैं, काफ़ी लोग उनको प्यार करते थे, तो कैसे आप याद करते हैं उनको? या तो बहुत से करते, क्योंकि दादा का कार्य ऐसा था कि दादा के जैसा काम अभी तक किसी मंत्री ने किया नहीं, ऐसा काम दादा ने किया है। दादा हर दिन काफ़ी सुबह उठते थे, सुबह 5:30 बजे से 6 बजे। अजीत दादा पवार, महाराष्ट्र, ऑल पीपल गॉड। यस, सबके भगवान थे, सबके देव थे, किसानों के भगवान थे, चले गए। देव मानस थे दादा। दादा बारामती के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण, हमारे लिए दादागिरी से हमारी बहुत बारामती की जान गई है। बाहर जब हम जाते हैं, कहाँ से आया बोलते तो हम बोलते थे बारामती से, अजीत दादा पवार से गाँव के है। दादा का नाम लेते ही आदमी डरता था। अभी दादा नहीं है बहुत, इसलिए हमको बहुत दुख हो रहा है। भरोसा हो पाया आप लोगों को जब कल ये खबर आई, जिस तरह की जब न्यूज आई? बिल्कुल, अभी भी भरोसा नहीं हो रहा, अभी भी भरोसा नहीं किसी को। इसके लिए खुद आ गए। हम तो 700 किलोमीटर से आए, धुलिया से 700 किलोमीटर। एक महाराष्ट्र का नहीं, पूरे इस देश का एक कद्दावर नेता, अजीत दादा के जैसा नेता अभी इस सदी में तो होना नहीं है, क्योंकि दादा ने अपनी जो पहचान बनाई वो अपने काम से पहचान बनाई। दादा जब सवेरे 6 बजे से काम पे लगते थे तो रात के 12 बजे तक आप काम करते थे। हमारे नेता ने इस जनता के लिए दिन में 24 घंटे से 18 घंटे हमारे लिए दिए हैं। उन्होंने अपने आप को सिर्फ जनता का प्रतिनिधि माना, अपने फैमिली को, अपने आप को कभी उन्होंने वक्त नहीं दिया। हमने ये देखा कि उन्होंने अगर सुबह 6 बजे का वक्त दिया है किसी को अपॉइंटमेंट, तो 6 बजे दादा उधर हाजिर रहते थे। अपॉइंटमेंट लेने वाला लेट हो सकता था, लेकिन दादा लेट नहीं होते थे। दादा का ये काम हमारे लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए, और हम ऐसे नेता को खो दिए हमने कि जो आने वाली सदी में होने वाला नहीं है। हमारा सब कुछ था दादा। दादा से हमको ये उम्मीद थी कि हमको अगर कोई कितना भी परेशान करता था तो हमने अगर दादा को वो प्रश्न, दादा के सामने वो मसला, दादा के सामने वो हमारी मुश्किलात रखी तो दादा उसको हल कर देंगे। हमको ये विश्वास था और उस विश्वास को दादा पात्र थे। दादा के जैसा नेता होना नहीं है, होना नहीं है।
हम दादा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। Clearly, you just heard how people are getting emotional while mentioning about Ajit Dada's style of functioning, the way in which Dada used to interact with his workers, he used to interact with the people of the state. So clearly, we have more people over here. Sir, हमने देखा है बारामती में खास तौर पे साहब शरद पवार साहब ने किस तरीके से एक पॉलिटिकल लेगेसी लाई यहाँ पर, और फिर अजीत दादा उसको आगे लेकर गए। लोगों के बीच में रहना, उनका सुनना, लोगों की बातों को सुनना, उनका काम करना। तो आप कैसे याद करते हैं दादा को? दादा को हम ऐसे याद करते हैं कि इतिहास में आपने पढ़ा है, शिव शाहू फुले अंबेडकर जो विचार सेकुलरिज्म था, इसका मूर्तिमंत उदाहरण आदरणीय अजित दादा थे। क्योंकि अपने मंत्रिमंडल में नवाब मलिक थे, हसन मुशर्रफ थे, अन्ना बंसुड़े थे, ऐसे करके बारामती में भी उन्होंने जो काम किया है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला हो, चर्च का काम हो, शादी खाने का मुस्लिम लोगों का काम हो, Please request you to stay on with me as